الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. دل کی گہرائیوں سے بآواز بلند تمام احباب درود پاک پڑھ لیجئے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، آج مورخہ 6 ستمبر 2024 کو یہاں میں ختم نبوت کے مرکز میں آپ سے مخاطب ہوں، اور آج کا دن تقاضا کرتا ہے کہ ہم 2 پہلوؤں پر ضرور بات کریں. ایک، پاکستان کی تاریخ میں 6 ستمبر کا دن دفاع کے لحاظ سے ایک تاریخی دن ہے. دوسرا، 7 ستمبر کا دن ختم نبوت کی نسبت سے بڑا تاریخی دن ہے. تھوڑے سے وقت میں انہی 2 پہلوؤں پر آپ سے بات کروں گا. 6 ستمبر کے حوالے سے پاکستان میں لوگوں کے سامنے دفاع پاکستان کے نام سے 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، اظہار کیا جاتا ہے. ملک پاکستان 1947 کو بڑی لازوال قربانیوں کے بعد وجود میں آیا تھا، اور پاکستان بننے کا مقصد ایک اسلامی ریاست، ایک اسلامی اسٹیٹ بنانا تھا. اتنی ساری قربانیاں اس لیے دی تھی کہ ایک اسلامی ملک ہوگا پاکستان. چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ جن مقاصد کے لیے پاکستان لیا تھا، جن مقاصد کے لیے ہزاروں لاکھوں ہر طرح کی قربانیاں دی گئی تھیں، جن مقاصد کے لیے گھر اجڑ گئے تھے، خاندان بکھر گئے تھے، کچھ قتل ہو گئے، کچھ زخمی ہو گئے، کچھ ادھر رہ گئے، کچھ یہاں آ گئے. ان ساری قربانیوں کا مقصد یہ تھا کہ ایک ملک بنے جس ملک کے اندر صرف اسلام کا نظام ہو، اسلام کا قانون ہو، اسلامی ملک ہو. اس ملک کے نظام کو دیکھ کر پیارے آقا کا زمانہ یاد آ جائے،
آقا کے غلاموں کا یعنی خلافت راشدہ کی یاد تازہ ہو جائے. لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ یہ وہی پاکستان جو ان مقاصد کے لیے بنا تھا، شروع سے ہی یہاں کہنا شروع کر دیا گیا کہ پاکستان ایک لبرل ملک ہے، اور پھر لبرل ملک بنانے کے لیے یہاں پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر جو بیرونی طاقتیں تھیں انہوں نے محنتیں اور کوششیں شروع کر دیں. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ پاکستان جب بنا تھا تو اس کے بنیادی ڈھانچوں کو یوں تبدیل کیا جاتا کہ ہر پاکستان کے محکمے کا، پاکستان کے ہر طرح کے معاملات کا رخ اسلامی قوانین کے تابع کر دیا جاتا. پاکستان بنا تھا، طے کر لیا جاتا کہ یہاں پر جس طرح کے بھی مالیاتی ادارے ہیں وہاں سود نہیں ہوگا، تمام مالیاتی اداروں میں سود سے پاک نظام اور سسٹم ہوگا. ایسا نہیں ہوا. چاہیے تو یہ تھا کہ ہر طرح کی بے حیائی سے ملک کو محفوظ کر لیا جاتا، لیکن یہاں پر تو بے حیائی کے بے شمار کاموں کو کلچر کے عنوان سے مختلف علاقوں کے کلچر کے نام سے کہ یہ ہمارے علاقے کا کلچر ہے، یہ سندھ کا کلچر ہے، یہ ہمارے علاقے کی ثقافت ہے، یعنی بے حیائی کو کلچر اور ثقافت کے نام پر پروموٹ کیا گیا، تحفظ دیا گیا، رواج دیا گیا. یہ بدقسمتی تھی. خیر، وہ محکمہ دفاع تھا، وہ ہمارا عدالت کا نظام تھا، وہ جتنے بھی ہمارے ملک کے ادارے تھے ان کو ہم نے دین اسلام کے تابع نہیں کیا، اور ہمارا ملک بدقسمتی سے اس لحاظ سے اجڑا رہا، اور جس کی وجہ سے ہم پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر جب سے پاکستان بنا ہے آج تک گرے ہوئے ہیں. چاہیے یہ کہ پاکستان ہمیں ملا تھا، ہم شکرانے کے طور پر اس ملک اور اس ملک کے سسٹم کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوا. یہاں پر اسلام کے نام لیواؤں کو ظلم و جبر کا نشانہ بنایا گیا. یہاں پر اسلام کے چاہنے والوں کو جیلوں کی سلاخوں میں بند کیا گیا. یہاں ملک پاکستان میں اسلام کے نام لیواؤں کی کردار کشی کی گئی. یہاں پر بجائے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے نظام کے نفاذ کے لیے کوشش کی جاتی، تعاون کیا جاتا، بلکہ اس کے برعکس دین اسلام کے نظام کے اندر رکاوٹ کے لیے باقاعدہ منظم سازشیں اور کوششیں کی گئیں. یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، آج بھی جاری ہے. لیکن جب میں پاکستان کے بننے کی تاریخ کے بعد کو دیکھتا ہوں دو چیزوں کی وجہ سے حوصلہ ہو جاتا ہے. کوئی شک نہیں کہ ان دونوں باتوں کو جب میں دہراتا ہوں تو قربانیوں کی داستان نظر آتی ہے، قربانیوں کی بڑی دردناک مثالیں نظر آتی ہیں، لیکن پھر بھی دل کو تسلی ہو جاتی ہے. ایک دن 6 ستمبر 1965 کا دن، دوسرا دن 7 ستمبر 1974 کا دن، لاکھ کمیوں کے باوجود، لاکھ دل پر بوجھ کے باوجود، ملک کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، ہو رہا ہے، اس پر دل کے کڑنے کے باوجود بھی پاکستان کی تاریخ میں 2 دن جب آتے ہیں دل کو تسلی ہو جاتی ہے، حوصلہ بڑھ جاتا ہے، ہمتیں بڑھ جاتی ہیں.
उम्मीद की किरणें जाग जाती हैं। वो 2 दिन कौन से हैं? एक 6 सितंबर 1965 का दिन जब याद आता है तो समझ आती है कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के रहने वाले लाख कमियों के बावजूद, लाख कोताहियों के बावजूद, लाख कमजोरियों के बावजूद, जब मुल्क पर ऐसा वक्त आया कि दुश्मन ने कमजोर समझा, दुश्मन ने कमजोर जाना और मंसूबे बनाए कि हम एक बार ऐसा हमला करेंगे कि लाहौर के जनाब जिमखाने में बैठ के चाय पिएंगे, सुबह नाश्ता करेंगे। सारे मंसूबे बने। मंसूबे को उनके अफसरान बाला और मुल्क के इक्तदार में बड़े बैठने वालों ने ओके किया। बावजूद इसके कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात कैसे थे, हालात कैसे थे, ये पाकिस्तान जहां पर हर वक्त आपस की लड़ाइयां खत्म नहीं होती, कहीं सुबाई तासुबात हैं, कहीं मजहबी मुनाफरत है और कहीं बरादरियों के झगड़े हैं, कहीं पर माशी मामलात हैं, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद 6 सितंबर 1965 को जब मुल्क पाकिस्तान की सरजमीन पर हिंदुस्तान के बदमाशों ने हमला किया, हमारी जुग्राफियाई सरहदों को क्रॉस किया, तो पाकिस्तान के वासियों ने अपनी गलतियों को भुलाकर दुनिया को पैगाम दिया, कोई शक नहीं हम उलझे हुए लोग हैं, कोई शक नहीं हम मुंतशिर लोग हैं, कोई शक नहीं हमारे बीच में कमजोरियां हैं, लेकिन मुल्क पाकिस्तान के वासी सारा कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, आपस में लड़ सकते हैं, झगड़े कर सकते हैं, लेकिन जब मुल्क पर ऐसा वक्त आएगा कि कोई दुश्मन हमारी जुग्राफियाई सरहदों पे हमलावर होगा, फिर हम अपने सारे झगड़े बुला देंगे, हम अपनी सारी चीजें भूल जाएंगे और फिर हम दुश्मन के सामने शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे। साथियों, 1965 के मौके पर यकबारगी कई महाज खोले थे हिंदुस्तान ने, सरगोदे के इलाके में, कसूर के इलाके में और लाहौर के इलाके में, और ये मेरा इलाका है, मैं उस इलाके का हूं, ये चविंडे की बॉर्डर, वहां हम बिल्कुल बॉर्डर के करीब रहते हैं और हम मुहाजिर हैं, उधर से उठे थे इधर आए थे। और 1965 को मेरे दादाजी शहीद हुए थे। मेरे दादा जान 1965 की जंग में चविंडे के आगे एक गांव में शहीद हुए थे और उनकी लाश भी नहीं मिली थी। 1965 के अंदर पाकिस्तान की कौम ने, पाकिस्तान के बच्चों ने, पाकिस्तान के जवानों ने, पाकिस्तान के बूढ़ों ने, घरों में बैठी खवातीन ने यह साबित कर दिया था, कुछ भी हो जाए मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो हमारी जुग्राफियाई सरहदों को मैली आंख से देखेगा, हम उनकी आंखें निकाल के रख देंगे। दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान ने जहाजों से हमला किया तो हमारे पायलट जान मर्दी के साथ अपनी जानों की परवाह किए बगैर उनके मुल्क के अंदर यहां से उनके लड़ाका तैयारों को भगाकर उनके घरों में जाकर भी उनको मारा था। और फिर हमारे फौजी तो लड़ ही रहे थे, सिविलियन जिनकी ट्रेनिंग नहीं थी, वो कोई फौजियों के लिए पानी ला रहा था, कोई फौजियों की मरहम पट्टी करने के लिए मैदान में निकला था। मेरा इलाका है, फौजी कहते थे घरों में चले जाओ, छुप जाओ। पाकिस्तान की सिविलियन अवाम के लिए यह तारीख शाहिद है कि पाकिस्तान के सिविलियन लोग डंडे लेके, सोटे लेके
पाकिस्तान के फौजी सिपाहियों के साथ शाना बशाना खड़े थे कि जो गोली तुम्हें लगेगी हम भी तुम्हारे साथ शहीद होना चाहते हैं। फौजी कहते थे कि भाई तुम निहत्थे हो, तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन आवाम कहती थी कोई बात नहीं है, तुम गोलियां चलाते हुए शहीद हो जाओगे, हम तुम्हारे साथ तुम्हारा हौसला बढ़ाते हुए शहीद हो जाएंगे। एक जब पाकिस्तान की तारीख में 6 सितंबर का दिन आता है, हमारे हौसले बढ़ जाते हैं कि हम ऐसी जुर्रतमंद कौम हैं, मौका आने पे मुत्तहिद हो जाते हैं। और वो हिंदुस्तान जो हमारे पाकिस्तान में घुस आया था, हमारे इलाके में, मेरा गांव हिंदुस्तान के कब्जे में चला गया था, चविंडे तक उनकी फौजें आ गई थी। कभी तुम्हें हमारे इलाके में जाने का मौका मिले, हिंदुस्तान के टैंक आज भी वहां पर चौकों में मौजूद हैं, चविंडे के अंदर, फिलौरे के अंदर, यहां पर गोल दायरा लगा के हिंदुस्तान के तबाहशुदा टैंक आज भी मौजूद हैं, शोहदा की यादगारें मौजूद हैं। और फौजियों ने भी और सिविलियन ने भी जिस्मों के अंदर, जिस्मों के साथ बारूद बांधकर फौजियों के टैंक आते, ये नीचे लेट जाते, टैंक फट जाता था। एक 6 सितंबर का दिन हमें हौसला देता है, हिम्मत बढ़ाता है कि हम पाकिस्तानी इतने कमजोर नहीं हैं जितने हम समझते हैं या दुनिया वाले समझते हैं। वक्त आने पर हम सीसा पिलाई हुई दीवार और लोहे की चट्टान से ज्यादा मजबूत साबित होते हैं। इसलिए आज 6 सितंबर का दिन हमें हिम्मत दिलाता है कि हम दुनिया में छा सकते हैं। और इस पहलू के हवाले से, इस एक जिहद के हवाले से बहरहाल पाकिस्तान दुनिया की, पूरी दुनिया के बीच में एक चमकता धमकता सितारा है। पाकिस्तान दुनिया की इस्लामी आबादी के लिए एक उम्मीद की किरण है, एक हौसले का निशान है। पूरी दुनिया के मुसलमानों को पता है कि पाकिस्तानी इस्लाम के लिए मजबूत हैं, बहादुर हैं, इस्लाम के दिवा के लिए लड़ाके हैं, जंगजू हैं। पूरे दुनिया के मुसलमान समझते हैं पाकिस्तान की फौज मुनज़्ज़म तरीन फौज है। पाकिस्तान के पास टैंक हैं, मिसाइल हैं, लड़ाके जहाज हैं। पाकिस्तान के पास वो ताकत है जो इस्लामी दुनिया में सिर्फ एक मुल्क पाकिस्तान के पास है, जो एटमी टेक्नोलॉजी है। साथियों, दूसरा दिन कौन सा है जो हमारी हिम्मत बढ़ाता है? आप बोलोगे वो दूसरा दिन कौन सा है? उच्ची बोलो ना यार, जोर नाल। 7 सितंबर का दिन हमारी हिम्मत बढ़ाए देता है। जो दुश्मन पाकिस्तान को लिबरल कॉलोनी बनाना चाहते थे, अपनी गुलाम कॉलोनी बनाना चाहते थे, जो पाकिस्तान को कादियानियों के हाथ में देना चाहते थे, वो दुनिया की आलमी ताकतें, उनके लिए 7 सितंबर का दिन ये उनको पैगाम देता है कि जिस तरह मुल्क पाकिस्तान की जुग्राफियाई सरहदों पर कोई हमलावर होगा, ये पाकिस्तानी मुत्तहिद हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। उसी तरह 7 सितंबर का दिन एक दुनिया को पैगाम देता है कि अगर पाकिस्तान की सरजमीन पर, अगर हमारी जो इस्लामी सरहदें हैं, जो इस्लामी सरहदें हैं, हमारी इस्लाम की जो रेड लाइंस हैं, अगर कोई इनको क्रॉस करेगा, अगर कोई दीन इस्लाम की बुनियादी चीजों पर, बुनियादी अरकान पर, बुनियादी सुतूनों पर हमला करेगा, कोई हमारे आका की नामूस की तरफ, इज्जत की तरफ मैली आंख से देखेगा, तो पाकिस्तानी फिर इकट्ठे हो जाएंगे, पाकिस्तानी फिर मैदान में उतर जाएंगे, पाकिस्तानी फिर फिरकावारियत की लड़ाइयों को भूल जाएंगे, पाकिस्तानी फिर सूबाई तासुबात को भूल जाएंगे, पाकिस्तानी फिर
शीशा पिलाई हुई दीवार बन के मैदान में उतर जाएंगे। ये 7 सितंबर का दिन हमें याद दिलाता है कि जब पाकिस्तान के अंदर कादियानी उरूज की तरफ जा रहे थे, उनका गुरूर संभाला नहीं जा रहा था, वो पाकिस्तान को अपनी रियासत बनाने के ख्वाब देख रहे थे। इस्लाम के मतवाले, इस्लाम के चाहने वाले, इस्लाम का परचम थामने वाले हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के रूहानी फर्जंद सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के रूहानी बेटे, यूं कहूंगा वो काबिरीन जिन्होंने अंग्रेजों को भगाया था, अंग्रेजों को नाकू चने चबवाए थे, उनके रूहानी वारिस मैदान में उतरे और पाकिस्तान के अंदर एक तारीख रकम कर दी कि लोगों, वो पाकिस्तान में रहते हो या दुनिया में रहते हो, जिस तरह हम 6 सितंबर को अपनी जुग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करके दुनिया को पैगाम देना जानते हैं, बिल्कुल इसी तरह 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान के बच्चे ने, पाकिस्तान के जवान और बूढ़े ने, पाकिस्तान की खवातीन ने गलियों में मुत्तहिद होकर, मस्जिदों में मुत्तहिद होकर, बाहर जुलूस निकाल कर, अवाम मैदान में निकल कर एक पैगाम दे रही थी कि हम आका की नमूस के लिए, आका की इज्जत के लिए, आका की खत्म नबुव्वत के लिए सिर्फ इकट्ठे ही नहीं हैं, मर मिटने के लिए तैयार हैं, जाने देने के लिए तैयार हैं। ये मामला सिर्फ अवाम तक नहीं है, अफसरान साथ थे, ब्यूरोक्रेसी साथ थी और तमाम मुल्क के इदारे साथ थे, यहां तक कि पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदा पार्लियामेंट। कह दो सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह का मतलब पता क्या होता है? कि अल्लाह ही पाक है, अल्लाह ही सबसे बुलंद है, अल्लाह ही ताकतों वाला है। तसव्वुर में सोच सकते हो वो पार्लियामेंट जहां कोई शिया है, कोई देवबंदी, कोई बरेलवी, और जहां कोई नेक है, कोई बुरा है, कोई शराबी है, कोई चोर है, कोई करप्शन ज़दा है। पाकिस्तान की उस कौमी असेंबली में एक तरफ पूरी कौम मुत्तहिद थी, दूसरी तरफ आपकी पार्लियामेंट में क्लीन शेव भी एक ही सफ में खड़ा था, दाढ़ी वाला भी एक ही सफ में खड़ा था, और 7 सितंबर 1974 को कानून साजी करके दुनिया को पैगाम दे दिया था पाकिस्तान की जुग्राफियाई सरहदों को भी नहीं छेड़ा जा सकता और पाकिस्तान की इस्लामी सरहदों को भी नहीं छेड़ा जा सकता। तुम कुछ भी कर लो, पाकिस्तान की जुग्राफियाई सरहदें भी महफूज रहेंगी और पाकिस्तान की इस्लामी नजरियाती सरहदें भी महफूज रहेंगी। और पाकिस्तान के पार्लियामेंट के इस फैसले के बाद, इस कानून साजी के बाद कि पाकिस्तान के अंदर कादियानियों को काफिर गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया था, उसके बाद भी कादियानी पूरी दुनिया में उल्टे लटक रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, बैनुल अक़वामी फिरौनों के सामने जाके झोलियां फैला फैला कर भीख मांग रहे हैं। कई बार हमारे बीच में, हमारे अपने मुल्क के बीच में हमारे गद्दार पैदा करते हैं, हमारे अंदर से कई अपने जासूस बनाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम एक ऐसी कौम है, लाख कमियों के बावजूद, लाख कमजोरियों के बावजूद, जब ये मसला आता है कि हुजूर की नामूस और हुजूर की इज्जत के हवाले से अगर कोई दुनिया में सवाल उठाता है, पाकिस्तान के अंदर अगर इस कानून साजी को छेड़ने की कोशिश की जाती है, तो यहां का मुसलमान मुत्तहिद होकर बेदार हो जाता है। साथियों, कल 7 सितंबर है, अल्लाह की जब मदद आ जाए, अल्लाह की तरफ सब जब से इनाम, अल्लाह की तरफ से इनाम मिल जाए, तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि नहीं? दिल खोल के करना चाहिए। भाई साथियों, हमारे बड़ों ने, और अगर आप नाराज ना हो तो मुझे कहने दो, आज के इस वक्त के बूढ़े जर्नैल ने, इस वक्त के बूढ़े सिपा सलार ने, इस वक्त के बूढ़े
जवान ने, बूढ़े जवान ने, जिसे लोग कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान कहती है, जो हर वक्त बातिल के सामने शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाता है, जो हर वक्त बेदार मगज रहता है, जो हर वक्त हर तरफ नजर रखता है, इस्लाम पर हमला करने वाले हर दुश्मन के सामने खड़ा हो जाता है, उसने पाकिस्तानी अवाम को पुकारा है कि आओ आओ खत्म नबुव्वत की जमात की आवाज पर लब्बैक कहते हुए, खत्म नबुव्वत के बुजुर्गों के पीछे चलते हुए 7 सितंबर को लाहौर मीनारे पाकिस्तान जमा होना है। जमा होकर 7 सितंबर 1974 की याद ताजा करनी है और गोल्डन जुबली मनानी है, दुनिया को पैगाम देना है। आज भी हम वही जज्बा रखते हैं, आज भी हम वही मस्ती रखते हैं, उसी मौज से, उसी लगन से, उसी तरफ से हम मीनारे पाकिस्तान में जमा होकर दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं। साथ दोगे, साथ चलोगे और इस निस्बत को कायम करोगे। बड़ी ऊंची निस्बत है ये। 1974 को शायद हम नहीं थे, लेकिन आज उस निस्बत को जिंदा कर सकते हैं। कल चलेंगे लाहौर, कल बहुत बड़ा इकट्ठ हो रहा है हुजूर के दीवानों का, हुजूर के साथ निस्बत रखने वालों का, हुजूर की खत्म नबुव्वत के परवानों का। लाहौर में बड़ा जम्मे गफीर है, वहां पहुंचो, लाउड स्पीकर में तकरीरों की समझ आए कि ना आए, वहां जमा होकर इंसानी सरों का जब एक समंदर ठाठे मारेगा, वहां पर दुनिया को पैगाम पहुंच जाएगा, हमारी हाजिरी लग जाएगी। कोशिश करेंगे जी। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दूसरा ऐलान भी सुन लीजिए।